Assalamu alaikum. Today on 14th April 2021, I'm starting lecture number 1 for week number 7, and the topic of today's lecture is conditional probability. What is conditional probability? Actually, what happens that whenever we perform an experiment, we can easily make a set of all possible outcomes known as the sample space of the experiment. Now, if we are being told by someone that out of these total possible outcomes, there is a certain event. वालेकुम अस्सलाम नहीं नहीं लेक्चर चल रहा है जी so if we are being told by someone that out of these total possible outcomes, suppose these are the set of some outcomes that are occurring. So we are being told by someone that event A is confirmed that it is occurring in this experiment. And now we are interested to calculate that what is the probability that event B will also occur. So this is the condition where we say that we need to apply the probability. I have not opened the slides yet. I am just giving you an overview of the conditional probability. Then inshallah, I shall open the slides. So what is the situation? That if we are interested in the occurrence of a particular event, after being told that in the same experiment, a particular event has occurred previously. So let us now open the slides. So this is the condition that we say that what is the probability that event B will occur in future, given that event A has already occurred in past. So what is happening? If we write probability of B slash A on the left hand side of the formula, then its meaning is that we need to calculate that what is the probability that event B will occur in future if it is given that event A has already occurred. So to calculate this probability, we calculate the probability of intersection of the two events and put it on the numerator of the fraction, and similarly we calculate the probability of the given experiment and we put it in the denominator of the fraction, and hence we find out the probability which is known as the conditional probability, that is probability of B slash A. अच्छा, probability of B slash A का मतलब क्या है? Probability of B slash A का मतलब ये है कि क्या probability है कि event B future में occur होगा. अगर आपको ये पहले से बता दिया गया है कि event A occur हो रहा है या event A occur हो चुका है, ठीक है जी, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें 10 पॉसिबल आउटकम्स थी सपोज, और कोई आपको ये बता देता है कि इसमें से ये वाली 4 जो है वो हो रही है, तो वो इवेंट ए होगा यहां पर, कि हमें पता है ऑलरेडी कि इवेंट ए हो रहा है. अब वो कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर इवेंट ए हो रहा है तो इवेंट बी भी होगा. तो अब देखिए ना, ये एक कंडीशन है कि अगर इवेंट ए हो रहा है तो अब बताएं कि इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो डिफरेंट तरीके हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं. एक तरीका कहलाता है कि आप यूज ऑफ फॉर्मूला करें, जो आपको सामने नजर आ रहा है कि ये फॉर्मूला है और आपने इसको यूज करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है. इसमें तो अगर आपको ये बताया हुआ है कि इवेंट ए हो चुका है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट बी होगा, तो आप इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को डिनोमिनेटर में रखें और इवेंट ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को न्यूमरेटर में रखें, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट बी होगा अगर इवेंट ए हो चुका है. अच्छा, एक और तरीका इसी सवाल को करने का ये होता है कि आप फॉर्मूला यूज ना करें, बल्कि आप सैंपल स्पेस को रिड्यूस करके एक नया सैंपल स्पेस गिवन इवेंट ए के लिए मालूम करें और उस नए सैंपल स्पेस से प्रोबेबिलिटी
आप फाइनली b/a की मालूम करेंगे। ठीक है जी, तो ये दोनों तरीके हम सीखेंगे। स्लाइड्स में आपको जो सेकंड वाला तरीका है बताया हुआ है, और फॉर्मूले वाला तरीका मैं आपको उसी सवाल के लिए बोर्ड पर करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो अब आते हैं स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। तो जी, सबसे पहले वो कहते हैं कि जी अ फेयर डाई इज टॉस्ड, एक फेयर डाई को टॉस किया गया। व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अगर एक फेयर डाई को टॉस किया गया है तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा। तो आप में से कोई बताएगा कि अगर एक फेयर डाई को टॉस किया गया है 1 2 3 4 5 6, तो जाहिर है कि जो सैंपल स्पेस है वो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होता है। तो डाई में 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। लिहाजा अगर एक डाई को एक दफा टॉस किया गया है तो सैंपल स्पेस 1 से लेकर 6 तक हमें मिलेगा। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस सैंपल स्पेस में, इस एक्सपेरिमेंट में एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? जी 3 3/6। 3/6 ये ज्यादा सही आंसर है जो सेकंड स्टूडेंट ने दिया कि 3/6 दैट इज 1/2। तो बिल्कुल सही है। इस एक्सपेरिमेंट में ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि इसी एक्सपेरिमेंट में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 1 3/6। वो भी 3/6 यानी 1/2 है। रीजन के जो इवन नंबर्स है वो 2, 4 और 6 हैं, तो तीन डिफरेंट तरीकों से इवन नंबर आ सकते हैं। तो न्यूमरेटर में हम 3 लिखेंगे और टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हैं, तो डिनोमिनेटर में हम 6 लिखेंगे। तो 3/6 करते हैं तो टोटल यानी नंबर के इवन आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आ जाती है। जबरदस्त हो गया। आगे चलते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर एक इवेंट ए हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि एक ऐसा नंबर आता है जो ग्रेटर देन 3 है, तो इस इवेंट सेट को हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी आउटकम्स आएंगी? लास्ट 3 आएंगे सर। लास्ट 3 आएंगी, बिल्कुल सही। तो अगर हमने इवेंट ए लिखना है तो उसकी आउटकम्स आएंगी 4, 5 एंड 6। जबरदस्त हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर हमें पता है कि ये इवेंट ए हो चुका है, अब वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ आ रही है। गिवन दैट event A has already occurred, what is the probability that we will get an odd number now? अगर हमें पता है कि इवेंट ए हो चुका है तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ऑड नंबर मिलेगा? जी, तो क्या आंसर होगा? 1/3 सर। 1/3। परफेक्ट। तो अब आपने देखा, ये आपने बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल सॉल्व किया है, लेकिन इसमें आपने फॉर्मूला यूज नहीं किया। इसमें आपने क्या किया? आपने सैंपल स्पेस को रिड्यूस करके एक रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस से प्रोबेबिलिटी मालूम की। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक डाई रोल हुआ। आपने सबसे पहले बड़ा वाला यानी टोटल सैंपल स्पेस लिख दिया। फिर उसमें गिवन स्टेटमेंट क्या थी कि इवेंट ए हो रहा है, और इवेंट ए क्या था कि एक नंबर ऐसा आएगा जो ग्रेटर देन 3 होगा। तो आपने सैंपल स्पेस से एक छोटा सैंपल स्पेस इवेंट सेट के लिए 4, 5, 6 मालूम कर लिया। अब सवाल यह था कि if it is given that event A is occurring, what is the probability that we will get an odd number? तो अब आपने odd number की probability असल सैंपल सेट से नहीं दी, बल्कि नए वाले सैंपल सेट यानी इवेंट सेट से दी। तो इवेंट सेट में क्योंकि 3 में से सिर्फ एक ही ऑड नंबर था, तो इस तरह से आपने उसको आंसर लिखा 1/3। अच्छा, जरा गौर करें कि जो फॉर्मूला मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया वो यहां पर यूज नहीं हुआ और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम हो गई। जी सर जी सर, ये जो 3 लिखा हुआ है ये कौन सा वाला है? ये ऑड नंबर जो आपने सेट ए निकाला उसका 3 है, या फिर जो ऑड नंबर तुम्हारे पास 3 थे पहले ही वो वाला 3 है? ये बेसिकली हमने ये देखा है बेटा कि जो सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अगर हमें ये पता चल चुका है कि सेट ए हो रहा है
तो अब प्रॉब्लम का सैंपल स्पेस सेट ए बन जाएगा। ठीक है, अगर हमें ये गिवन है कि सेट ए हो रहा है, यानी इवेंट ए अकर कर रहा है, तो अब एक नया सैंपल स्पेस यानी सेट ए के सेट को हम सैंपल स्पेस मानेंगे। ठीक है जी, और अब इसमें से वो पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ऑड नंबर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और उनमें से सिर्फ एक ऑड है जो कि 5 है। तो इस वजह से सेट ए में से एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो ये जो 3 है ये सेट ए के 3 एलिमेंट्स की वजह से आया है। ठीक है, अच्छा अब इसमें गौर करें, यहां पर भी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम की। मेन एक्सपेरिमेंट क्या था कि डाई रोल हुआ है। गिवन एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक ऐसा नंबर आया है जो ग्रेटर देन 3 है। तो हम लोगों ने गिवन में एक नया सैंपल स्पेस उसके लिए एक सेट बना दिया 4 5 6। अब उन्होंने पहले ये बता दिया था कि इवेंट ए हुआ है, अब वो पूछ रहे थे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर आएगा। तो हमने कहा कि अगर इवेंट ए हुआ है तो अब हम इवेंट ए में से ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे। तो हमने इवेंट ए से जब ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी देखी तो वो 1/3 थी, लिहाजा हमने आंसर 1/3 दे दिया। अच्छा, ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम की, लेकिन इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम करते वक्त हम लोगों ने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया, बल्कि हमने टेक्निक क्या यूज की कि वो एक्सपेरिमेंट जो कि गिवन है, जो कि मालूम है, उसका सेट मालूम कर ले। और जब उसका सेट मालूम कर ले तो अब जिस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए वो इस नए सेट में से मालूम होगी। तो याद रखिए कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को करने का एक तरीका है, लेकिन ये सैंपल्स ये वो तरीका नहीं है जो कि फॉर्मूले वाला है। अगर इसी सवाल को फॉर्मूले से करना होता तो हम कैसे करते, इसको हम देखते हैं बोर्ड पर। तो आपका यहां से हम करते हैं अनशेयर स्लाइड्स को। ठीक है, स्लाइड्स को अनशेयर करते हैं, बोर्ड को ऑन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड नजर आ रहा है? यस सर। जी, यस तो सर। सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। ठीक है जी, तो सैंपल स्पेस क्या था? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्योंकि एक डाई को एक दफा रोल किया गया था तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो आपके पास 6 थी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है जी, अब आपके पास कंडीशन क्या थी? गिवन एक्सपेरिमेंट आपके पास था क्या? गिवन इवेंट था क्या आपके पास? उन्होंने कहा था कि इट इज गिवन दैट अ नंबर ग्रेटर देन 3 अकर्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल अकर? ठीक है, ये आपको बताया हुआ है, ये आपको गिवन है कि एक नंबर ग्रेटर देन 3 आएगा। अब आप इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताएं कि क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर एक ऑड नंबर होगा। तो इसको हम फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? गिवन दैट नंबर इज ग्रेटर देन 3, what is the probability that number is odd? ठीक है जी, given that the number is greater than 3, what is the probability that number is odd? तो दो चीजों की बात हो रही है, ऑड होने की और ग्रेटर देन 3 की। तो न्यूमरेटर में इनका इंटरसेक्शन आएगा, ऑड इंटरसेक्शन ग्रेटर देन 3, और इस चीज की प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इंटरसेक्शन ग्रेटर देन 3, और डिनोमिनेटर में किस चीज की प्रोबेबिलिटी आएगी? एक नंबर जो ग्रेटर देन 3। याद रखिए, जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना तो हम नया सेट नहीं बनाते। फॉर्मूले का फायदा क्या है कि आप इसी सेट से आंसर देते हैं। अब आप देखिए कि डिनोमिनेटर में आपने प्रोबेबिलिटी लिखनी है कि वो नंबर ग्रेटर देन 3 हो।
तो मुझे बताएं कि इस सैंपल स्पेस में से ग्रेटर देन 3 नंबर आने की चांसेस या प्रोबेबिलिटी क्या है? जी, इस सैंपल स्पेस में से 4/6 या 3/6? 1/2 सर। जी 1/2 यानी 3/6, तो हम लिखेंगे 3/6 क्योंकि 3 आउटकम्स ऐसी हैं जो ग्रेटर देन 3 है, 4, 5 एंड 6। तो यहां पर एक ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 3 है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 है। अब न्यूमरेटर में आपने इसका एक सबसेट लिखना है, इसमें से एक छोटा सा पोर्शन ऊपर लिखना है, और न्यूमरेटर में लिखना क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ग्रेटर देन 3 भी होगा और ऑड भी होगा। तो मुझे बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेट में एक ऐसा नंबर हो जो ग्रेटर देन 3 भी हो और ऑड भी हो। 1/3 1/3 1/3 या 1/6? इसमें टोटल कितनी आउटकम्स हैं? टोटल आउटकम्स इसमें कितनी है? 6 आउटकम्स है। ग्रेटर देन 3 भी हो ना सर? ग्रेटर देन 3 हाँ तो ठीक है ना, ग्रेटर देन, देखिए भी हो नहीं है बल्कि एक साथ होना जरूरी है। सिर्फ वो नंबर लिया जाएगा जो ग्रेटर देन 3 भी हो और वो ऑड भी हो, दोनों काम एक साथ हो रहे हो। तो ऐसे कितने नंबर है जो ग्रेटर देन 3 भी है और ऑड भी है सैंपल स्पेस में? सर नंबर 1 है 1/6। तो इसलिए हम 1/6 लिखेंगे। बिल्कुल सही, ऐसा एक ही नंबर है जो ग्रेटर देन 3 भी और ऑड भी है। तो अब आप देखें कि 6 से 6 कैंसिल हुआ और आपको वही सेम आंसर मिल गया जो आपने स्लाइड में देखा था, यानी 1/3। लेकिन इस दफा फर्क क्या है कि आपने एक बड़े सेट से एक छोटा सेट नहीं बनाया। दूसरी बात कि आपने फॉर्मूला यूज किया। तो याद रखिए कि जब भी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं तो आप रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस नहीं लेते, बल्कि आप एक्चुअल सैंपल स्पेस ही को यूज करते हैं। ठीक है ना? तो आई हाईली रिकमेंड कि आप फॉर्मूले का यूज करें, क्योंकि हर बंदा एक बड़े सेट से गिवन सेट का एक छोटा सेट मालूम आसानी से नहीं कर सकता। तो वो उसमें वालोकात कंफ्यूज हो जाता है कि सैंपल में इस वाले सेट को लूं या वो जो मैंने नया सेट बनाया था उसको लूं। देखिए दोनों तरीके वैलिड हैं। एक तरीका ये है कि आप बड़े सेट से एक छोटा गिवन सेट मालूम करते हैं और फिर गिवन सेट से आप प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम हो जाती है, फॉर्मूला यूज नहीं करते। दूसरा ये है कि आप एक मेन सैंपल सेट को ही सेट मानते, सैंपल स्पेस मानते, और फिर उसी से फॉर्मूला यूज करते हुए आंसर देते। ये है फॉर्मूला मेथड। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोनों तरीके से मालूम हो सकती है। अब हम दोबारा जाते हैं किसकी तरफ? स्लाइड्स की तरफ। तो कैमरा अनशेयर करते हैं, स्लाइड को एक दफा फिर ओपन करते हैं। जी स्टूडेंट, स्लाइड नजर आ रही है आपको? यस सर। जी, अब वो कहते हैं कि एक और सवाल उन्होंने बनाया है, और इस दफा वो कहते हैं कि अगेन एक फेयर डाइट टॉस हुआ है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? जी, फेयर डाइट टॉस होने पर सैंपल स्पेस क्या होता है? 1 से 6। 1 से लेकर 6 तक, बिल्कुल सही। अब वो कहते हैं कि ठीक है, अच्छा सर ये मेरा स्लाइड, ये वही वाला सवाल आ गया, आगे चलते हैं। ये वही वाला सवाल अब आ गया। हाँ जी, फेयर डाइट टॉस हुआ है। अच्छा, फेयर डाइट टॉस नहीं हुआ, सॉरी, डाई तो एक ही टॉस हुआ है लेकिन वो फेयर नहीं है। वो कहते हैं कि वो डाई इस तरह का है कि उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी से डबल है। ठीक है जी, एक डाई टॉस हुआ है, वो डाई एक फेयर डाई नहीं है, बल्कि वो एक इस तरह का डाई है कि उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी से डबल है। सैंपल स्पेस क्या होगा? जी सर 1 2 2 3 4 4 5 6 6। अच्छा, याद रखें कि कभी भी किसी सेट में एक एलिमेंट जो कि डिस्टिंक्ट ना हो दोबारा नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, एक सेट में 2 को 2 दफा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही क्या होती है? ठीक है सर। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, एक ऑब्जेक्ट 2 दफा नहीं होता। तो याद रखें यहां पर सैंपल स्पेस वही रहेगा 1 2 3 4 5 6,
क्योंकि एक डाई में आ तो यही सकते हैं ना नंबर 1 2 3 4 5 6, नो मैटर वो अगर फेयर नहीं है तो क्या होगा, 2 के आने के चांसेस ज्यादा होंगे, 1 के आने के चांसेस कम होंगे, बस यही होगा ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे कहते हैं कि कोई चेंज हो जाएगा, बात समझ रहे हैं आप, तो रहेगा तो वो सेम ही। ठीक है सर। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर हम ये कहें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर फ्रॉम दिस सैंपल स्पेस, तो इस सैंपल स्पेस से ऑड नंबर के आने के चांसेस क्या होंगे? जी 3/6। देखिए, अगर 3/6 है तो फिर तो ये फेयर डाई हो गया, क्योंकि फेयर डाई में भी 3/6 यानी 1/2 ही था। तो जरा गौर करें इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये डाई फेयर नहीं है तो हम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हर आउटकम को एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर देंगे। अब वो कैसे होगी, 1 की प्रोबेबिलिटी हम कहेंगे कि P है, और 2 की प्रोबेबिलिटी हम कहेंगे इससे डबल यानी 2P है। फिर 3 क्योंकि ऑड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कहेंगे P है, और 4 की प्रोबेबिलिटी उससे डबल यानी 2P। फिर इसी तरह से 5 क्योंकि ऑड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है P, और 6 क्योंकि इवन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2P। तो जब हम ये बात कर देंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 के लिए P, 2 के लिए प्लस 2P, 3 के लिए प्लस P, 4 के लिए प्लस 2P, 5 के लिए प्लस P और 6 के लिए प्लस 2P। तो P प्लस 2P प्लस P प्लस 2P प्लस P प्लस 2P, ये हो गए 9P। तो हमें पता है कि सैंपल स्पेस की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है और यहां पर टोटल प्रोबेबिलिटी मिली है 9P। तो हम लिखेंगे 9P इक्वल्स टू 1 एंड P इक्वल्स टू 1/9। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि P क्योंकि 1/9 है तो हर ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, और हर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी उससे डबल यानी 2/9 है। ठीक हो गया। अब हमें पता चल गया कि अनबायस्ड होने की वजह से हुआ, सॉरी बायस्ड होने की वजह से क्या फर्क आया। बायस्ड होने की वजह से फर्क ये आया कि हर एक का वेटेज, हर एक की प्रोबेबिलिटी बदल गई। पहले हर एक की प्रोबेबिलिटी एक जैसी 1/6 1/6 और 1/6 थी, अब हर ऑड की प्रोबेबिलिटी 1/9 है और हर इवन की प्रोबेबिलिटी 2/9 है। ठीक हो गया। अब अगर हम इस सवाल को देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर हमारे पास आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। तो मुझे बताएं क्या आंसर आएगा। 3/9। 3/9, और 3/9 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3। तो आपने देखा कि स्लाइड ने एक लाइन में जो बात बताई असल में उसके बैकग्राउंड पे बहुत कुछ था, वो उन्होंने नहीं लिखा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह से ये 3/9 होती है और फिर 1/3 आती है। अब इसी तरह से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर पूछे तो क्या आंसर आएगा इस केस में? 6/9। 6/9, क्योंकि हर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 2/9 है, तो 2/9 प्लस 2/9 प्लस 2/9 यानी 6/9, और 6/9 को सिंप्लीफाई करते हैं तो वो 2/3 मिल जाती है। जबरदस्त हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पर। ये तो सवाल थे सिंपल वाले। इसी एक्सपेरिमेंट में अब उन्होंने एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल आपसे पूछा है। वो ये कहते हैं कि एक ऐसा नंबर आया है जो कि ग्रेटर देन 3 है। एक ऐसा नंबर हमें मिला है, जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, एक बायस्ड डाई को हमने थ्रो किया तो क्या हुआ कि एक ऐसा नंबर मिला जो ग्रेटर देन 3 है, और ये फॉर्मूला यूज करना नहीं चाह रहे। तो मुझे बताएं कि जो इवेंट ए है, जो गिवन इवेंट है, इसमें कौन कौन सी आउटकम्स आएंगी। इवेंट ये है कि नंबर ग्रेटर देन 3 है। हम एक नया सेट बनाना चाह रहे हैं जिसमें नंबर ग्रेटर देन 3 हो, तो कौन कौन से नंबर लिखने चाहिए? जी स्टूडेंट्स, 4 5 6 ही होंगे सर। 4 5 6। तो हमने नंबर लिख दिए 4 5 6, क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि गिवन इवेंट ये है कि जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, एक बायस्ड डाई को थ्रो किया गया, तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ, इवेंट ए हो गया, यानी एक ऐसा नंबर आ गया जो ग्रेटर देन 3 था। हमने फोरम से एक रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस बना दिया। अब हमने प्रोबेबिलिटी इसमें से देनी है, इसमें से, और सवाल बिल्कुल वही है
कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर फ्रॉम दिस सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस से एक ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। लेकिन अब मसला क्या पड़ रहा है कि ये कोई, मतलब पिछली दफा हमने इसका आंसर 1/3 दे दिया था। वजह क्या था कि 4 की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 थी, 5 की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 थी, 6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 थी, क्योंकि डाई फेयर था। तो पिछली दफा तो जब ये सवाल उन्होंने पूछा था कि इवेंट ए हुआ है, अब आप बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी क्या ऑड नंबर होगा, तो हमने फौरन से काउंट किया 3 है, उनमें से ऑड 1 है, तो आंसर 1/3 दे दिया। वजह के डाई जो है वो फेयर था। अब यहां मसला है कि डाई फेयर नहीं है, तो सबसे पहले हम दोबारा से क्या करेंगे, 4, 5 और 6 को एक प्रोबेबिलिटी, एक वेट असाइन करेंगे। हम कहेंगे 4 की प्रोबेबिलिटी 2W है क्योंकि वो इवन है, 5 की प्रोबेबिलिटी W है क्योंकि वो ऑड है, फिर 6 की प्रोबेबिलिटी 2W है क्योंकि वो इवन है। तो इस तरह से 2W प्लस W प्लस 2W, और क्योंकि अब ये सैंपल स्पेस बन चुका है तो इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 है, तो 2W प्लस W प्लस 2W इक्वल्स टू 1। इस तरह से हमें मिला 5W इक्वल्स टू 1 और W इक्वल्स टू 1/5। तो अब नए सैंपल स्पेस का ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/5 और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 2/5। समझ आ गई? ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/5 और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 2/5। अब सवाल उन्होंने क्या किया, सवाल वो ये बताते हैं कि ऑड नंबर के क्या चांसेस होंगे। ठीक है जी, तो कैसे मालूम करेंगे? ठीक है, कहाँ गया, सॉरी पीछे चले गए हम वापस दोबारा। असल में बिल्कुल एक जैसे सवाल बने हुए हैं तो हम पीछे चले गए जरा। ये आगे वाला सवाल ये है, ठीक है जी, ठीक है। जी, तो ये बात जो मैंने की थी कि इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 2W और ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी W। तो 2W 4 के लिए, फिर W 5 के लिए और फिर 2W 6 के लिए। तो 2W प्लस W प्लस 2W 5W इक्वल्स टू 1 और W इक्वल्स टू 1/5। अब अगर हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि इवेंट ए हुआ है, यानी एक ऐसा इवेंट हुआ है जो ग्रेटर देन 3 नंबर आया है, और साथ में पूछते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। तो मुझे बताएंगे कि 4, 5 और 6 में से परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 4। तो असल में अब उन्होंने ये पूछा है कि गिवन ये है कि इवेंट ए हो गया और आप इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 आएगा। तो 4 की प्रोबेबिलिटी हमने क्या मालूम की थी कि 4 की प्रोबेबिलिटी है 2W, और 2W किसके बराबर था? क्योंकि W 1/5 था, तो 2W 2/5 था। तो इस तरह से अब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बगैर फॉर्मूले के मालूम की इस केस के लिए, तो वो आंसर आ गया हमारे पास 2/5। सवाल क्या था? सवाल ये था कि गिवन दैट अ नंबर ग्रेटर देन 3 occurs, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने एक ऐसा सैंपल स्पेस बनाया जिसमें सिर्फ वो नंबर लिखे जो ग्रेटर देन 3 थे। तो हमने लिखा सेट A इक्वल्स टू 4, 5 एंड 6। अब उन्होंने पूछा था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो हमें तो नजर आ रहा था कि वो नंबर 4 है। लेकिन मसला ये है कि 4 की प्रोबेबिलिटी अब सिंपल 1/3 नहीं थी, क्योंकि ये जो डाई था ये बायस्ड डाई था। तो हमने क्या किया कि हमने कहा 3 एलिमेंट्स हैं, एक है 4, एक है 5 एंड एक है 6। तो उन्होंने क्योंकि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया था कि इवन नंबर के आने की चांसेस डबल है, तो हमने 4 के चांसेस को 2W माना, 5 के चांसेस को W माना, 6 के चांसेस को 2W माना, और फिर हमने लिखा 2W प्लस W प्लस 2W इक्वल्स टू 1, क्योंकि अब ये सेट A जो है सैंपल स्पेस बना हुआ था तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 थी। तो 5W इक्वल्स टू 1 और W इक्वल्स टू 1/5। इससे हमने ये कंसीडर किया, इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि हर ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/5 है और हर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। अब सवाल ये था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर
परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर इन तीनों नंबर में से सिर्फ एक था, वो था 4, और 4 क्योंकि इवन था उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 थी, लिहाजा आंसर 2/5 आ गया। अब अगर इसी सवाल को हम लोगों ने सैंपल स्पेस को छोटा ना किया होता और बड़े सैंपल स्पेस से ही मैं आंसर देना चाहता, तो कैसे करते, बोर्ड पे देखते हैं। ठीक है जी, तो अब हम दोबारा स्लाइड को अनशेयर करते हैं और बोर्ड को आपसे शेयर करते हैं। ठीक है जी, अगेन हम चाहते क्या है कि हम इस चीज की प्रोबेबिलिटी मालूम करें, लेकिन इस दफा हम फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। ठीक है, और इस दफा हम एक छोटा सैंपल स्पेस मालूम नहीं करना चाहते। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले तो वही करेंगे जो मैंने आपको बताया था कि 1 की प्रोबेबिलिटी p और 2 की प्रोबेबिलिटी 2p, फिर 3 की प्रोबेबिलिटी क्योंकि ये ऑड है p, और 4 की प्रोबेबिलिटी 2p, फिर 5 की प्रोबेबिलिटी क्योंकि ये ऑड है p, और 6 क्योंकि इवन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2p, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। तो आपके पास आ जाएगा 9p इक्वल्स टू 1, और इसका मतलब ये है कि p इक्वल्स टू 1/9। इससे हमें पता क्या चला कि हर ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी p यानी 1/9 है, और हर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 2p यानी 2/9 है। अब सवाल क्या था, सवाल ये था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर is a perfect square given that number is greater than 3। क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर ये हमें पहले से पता है कि नंबर ग्रेटर देन 3 है। तो आपको पता है कि न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी आएगी परफेक्ट स्क्वायर इंटरसेक्शन ग्रेटर देन 3 की। न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी किस चीज की आएगी, परफेक्ट स्क्वायर इंटरसेक्शन ग्रेटर देन 3, और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी गिवन की आएगी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 3। सही है जी, लेकिन इस दफा हमने कोई छोटा रिड्यूस सेट नहीं बनाया, हम इसी सेट से आंसर देंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले बताएं कि ग्रेटर देन 3 कौन कौन से नंबर है डिनोमिनेटर के लिए। डिनोमिनेटर की मैंने प्रोबेबिलिटी लिखती है, ये बताएं कि नंबर जो ग्रेटर देन 3 है वो कौन कौन से हैं जी। 4, 5, 6। 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/9। और 5 की, 1/9। और फिर 6 की। 2/9। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी ग्रेटर देन 3 की, 5/9। 5/9। तो यहां पर हम लिखेंगे 5/9। अब न्यूमरेटर में याद रखिए इसी की एक छोटा सेट ऊपर लिखा जाता है। न्यूमरेटर में हमें वो नंबर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और उसके साथ साथ वो ग्रेटर देन 3 भी हो। तो ऐसे कितने नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और ग्रेटर देन 3 भी है? एक ही है सर, और वो है 4। तो 4 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/9। तो यहां लिखेंगे हम 2/9। 9 से 9 कैंसिल होगा और सेम आंसर 2/5 आपको मिल जाएगा। जो स्लाइड में 2/5 था, तो आप देख सकते हैं कि वही सेम आंसर 2/5 आपको यहां पर मिल गया। तो आज के दिन मैं आपको यह समझा रहा हूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम करने के दो तरीके। एक तरीका यह है कि सैंपल स्पेस से एक गिवन सेट का नया सैंपल स्पेस मालूम करें और उस नए सैंपल स्पेस से आप फिर प्रोबेबिलिटी मालूम करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता दें। और दूसरा तरीका यह है कि सैंपल स्पेस तो वही रहने दें, आप फॉर्मूला यूज कर लें। तो अब इट्स नाउ अप टू यू कि आपको कौन सा वाला आसान लगता है। मैंने आपको जो है वो दोनों बता दिए। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आप दोबारा से आपसे कैमरा ऑफ करते हैं, स्लाइड शेयर करते हैं। जी स्टूडेंट, स्लाइड्स नजर आ रही हैं? यहाँ पर भी Yes, इन्होंने जो यहाँ पे बोर्ड पे करके दिखाया है वही चीज इन्होंने यहाँ पे करके Yes, sir. दिखाई।
कि अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो 2/9 डिवाइड बाय 5/9 से भी वही आंसर आता जो कि 2/5 है, जो प्रीवियस स्लाइड में उन्होंने रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस से मालूम किया था। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं और अब नया सवाल है। वो कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेगुलरली स्केड्यूल्ड फ्लाइट डिपार्ट्स ऑन टाइम इज 0.83 और ये अराइव होती है टाइम पर, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 0.82 है। ठीक है, वो कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी, और ये दोनों काम टाइम पे करती है, यानी डिपार्ट भी टाइम पर होती है और ये अराइव भी टाइम पे होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.78 है। ठीक है जी, अब वो ये कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट विल अराइव ऑन टाइम गिवन दैट इट्स डिपार्टेड ऑन टाइम। मुझे ये बताएं कि क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है या ये एक नॉर्मल सवाल है? जी, क्या इसमें ऐसा हो रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट, एक रिजल्ट के आने का आपको बताया जा रहा है और दूसरे के आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है? अगर ऐसा है तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है। कंडीशनल है सर। ये कंडीशनल है। अब मुझे बताएं कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, वो कौन सी आउटकम है जिसका होना कंफर्म है? टाइम पर डिपार्ट होना कंफर्म है या टाइम पर अराइव होना? अराइव होना सर। नहीं, यहां पर अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। सवाल ये कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टाइम पर अराइव करेगा गिवन दैट, अगर ये आपको बता दिया गया है कि इट्स डिपार्टेड ऑन टाइम, कि वो टाइम से डिपार्ट हुआ था। ठीक है सर। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D। मतलब ये कंफर्म है कि वो गया टाइम पर था। अब हमने इस चीज की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि वो टाइम पर आया था या नहीं। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D हमसे पूछी है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D के बराबर होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D भी आपको दी हुई थी और प्रोबेबिलिटी ऑफ D भी आपको दी हुई थी, तो आपने दोनों को डिवाइड किया और सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D मालूम कर ली। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। मुझे सवाल की स्टेटमेंट बता के मतलब पढ़ के बताएं कि क्या चीज पूछी गई है। Departed on time gives that it has arrived on time. तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D है या प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A है जो पूछी है? सर D/A। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A मालूम करेंगे, उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A चाहिए, वो भी दी हुई थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A चाहिए, वो भी दी हुई थी। तो सिंपली इन दोनों को डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A मालूम कर लिया। अच्छा, इसके बाद जो अगला सवाल है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D कॉम्प्लीमेंट है। वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D कॉम्प्लीमेंट। लेकिन उस सवाल को मैं कराऊंगा बोर्ड पर। ठीक है, तो अगेन इसको करते हैं हम अनशेयर और बोर्ड को करते हैं ऑन। और जो डेटा दिया हुआ है सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। डेटा क्या दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ D जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ D 0.83 है। इसी तरह से दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो 0.82 है। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ D इंटरसेक्शन A जो है वो 0.78। आपके पास 0.78 है। अब हमें सवाल क्या पूछा है उन्होंने? सवाल हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D कॉम्प्लीमेंट। सवाल उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D कॉम्प्लीमेंट। ये सवाल हमें सॉल्व करना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये सवाल हमने सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D कॉम्प्लीमेंट। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको अगर मालूम करना चाहे फॉर्मूले से हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D कॉम्प्लीमेंट
equals to probability of A intersection D complement divided by probability of D complement. लेकिन D complement की probability क्या होगी, A intersection D complement की probability क्या होगी, सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस सवाल को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। वेन डायग्राम में एक सर्किल बनाएंगे हम डी के लिए और एक सर्किल हम बनाएंगे ए के लिए। और आपको पता है कि वेन डायग्राम कहां से शुरू करनी चाहिए फिल करते हुए, याद रखिए वेन डायग्राम हमेशा इंटरसेक्शन पोर्शन से शुरू करना चाहिए फिल करने के लिए। तो इंटरसेक्शन पोर्शन में हमें दिया हुआ था कि प्रोबेबिलिटी 0.78 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 0.78। अब डिपार्चर की टोटल प्रोबेबिलिटी थी 0.83, उसमें से 0.78 हम यहां लिख चुके थे, तो बाकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.83 माइनस 0.78, तो यहां पे आ जाएगी 0.05। इसी तरह से अराइवल की टोटल प्रोबेबिलिटी है 0.82 और यहां पर हम लिख चुके थे 0.78, तो हम क्या करेंगे 0.82 माइनस 0.78, तो जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 0.04 आ जाएगी। अब अगर हम इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं तो 0.05 प्लस 0.78 ये 0.83 हो जाता है, 0.83 प्लस 0.04 ये 0.87 हो जाता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्योंकि 1 होती है, इन दोनों सर्किल्स में मिलाकर 0.87 है, तो जो सर्किल के बाहर प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 माइनस 0.87 यानी 0.13 होगी। अब ये वेन डायग्राम हमारे लिए कंप्लीट हो गई, हर पोर्शन की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने लिख दी। अब हमारा काम बहुत आसान है, डिनोमिनेटर में हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट, यानी डी से बाहर की प्रोबेबिलिटी। तो डी से बाहर के दो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब सर्किल डी से बाहर की प्रोबेबिलिटी। तो सर्किल डी से बाहर दो पोर्शन है, दोनों को ऐड किया तो आंसर 0.17 आ गया। ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ऐसा पोर्शन जो ए में हो लेकिन डी में ना हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ऐसा पोर्शन जो ए में तो हो लेकिन वो डी में ना हो। तो क्या लिखूं इसकी जगह 0.04, तो इसकी जगह मैं 0.04 लिख दूंगा। तो इस तरह से आंसर 4/17 या 0.24 आ जाएगा। तो आपने देखा कि अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो जाए, आपको सवाल सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो वेन डायग्राम इज एन इफेक्टिव टूल दैट कैन मेक दिस क्वेश्चन सिंपलर फॉर यू। तो जब कभी आपके लिए पॉसिबल हो, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना लिया करें, ट्री डायग्राम बना लिया करें, वेन डायग्राम बना लिया करें, ताकि आपके लिए वो क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाए। ठीक है जी। तो अब इसको दोबारा अनशेयर करते हैं और स्लाइड्स को दोबारा शेयर करते हैं। ठीक है जी, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो इन्होंने किया a/d कॉम्प्लीमेंट के लिए वही हमने किया कि 0.04 न्यूमरेटर में, 0.17 डिनोमिनेटर में, तो 0.24 हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। तो खैर नेक्स्ट पे जाते हैं। वो ये कहते हैं कि एक इंडस्ट्री है जो कि कुछ स्ट्रिप्स तैयार करती है और ये स्ट्रिप्स जो है वो दो तरह के टेस्ट इन पर किए जाते हैं। एक इनका लेंथ टेस्ट होता है, तो ये कभी कभार लेंथ टेस्ट फेल कर सकती हैं, और दूसरा है कि कभी इनका टेक्सचर टेस्ट होता है और कभी वो भी ये फेल कर सकती हैं। ये जो स्ट्रिप है वो लेंथ टेस्ट फेल करेगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी जो है वो 10% यानी 0.1 है, और ये चीज जो है वो टेक्सचर का टेस्ट फेल करेगी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, तो वो 5% यानी 0.05 है। और ये चीज यानी कि ये स्ट्रिप जो है वो दोनों टेस्ट फेल करेगी, इसके चांसेस बहुत ही कम यानी 0.8% है, यानी 0.8 डिवाइड बाय 100 यानी 0.008।
तो आसान अल्फाज में प्रोबेबिलिटी ऑफ एल है 10% यानी 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी है 5% यानी 0.05 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन टी 0.8% यानी 0.008 है। ठीक है जी। अब वो सवाल क्या करते हैं, सवाल पे गौर करके आपने मुझे बताना है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एल स्लैश टी है या प्रोबेबिलिटी ऑफ टी स्लैश एल है। सवाल की स्टेटमेंट आखिरी 2 लाइंस पे लिखी हुई है। वो कहते हैं इफ अ स्ट्रिप इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द प्रोसेस, रैंडमली एक स्ट्रिप को हमने उठाया, उसके बाद उसकी मेजरमेंट की और आइडेंटिफाई किया कि इट इज फेलिंग द लेंथ टेस्ट, और हमने मालूम कर लिया कि वो लेंथ टेस्ट फेल कर रही है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट इट इज टेक्सचर डिफेक्टिव, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये टेक्सचर डिफेक्टिव होगी। तो आप मुझे बताएं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टी स्लैश एल है जो हमने मालूम करनी है, या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एल स्लैश टी है? टी स्लैश एल सर। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टी स्लैश एल है। क्यों? बहुत सही आपने जज किया कि उन्होंने खुद बता दिया है कि लेंथ टेस्ट फेल हो रहा है, तो वी आर श्योर कि लेंथ टेस्ट फेल हो रहा है। और किस चीज के फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है? टेक्सचर के फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है। तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टी स्लैश एल है, और वो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन एल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एल क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन एल 0.8% यानी 0.8 डिवाइडेड बाय 100 दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल 10% यानी 0.1 दिया हुआ था। तो इस तरह से बड़ी आसानी से प्रोबेबिलिटी ऑफ टी स्लैश एल मालूम हो गई। ठीक है जी। और दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ these slides. So inshallah tomorrow I shall solve exercise problem for you, so you can come up with any exercise problem of chapter 2, and if you feel that it is a difficult problem and you want the solution of this problem, then inshallah I shall solve it for you. तो जो कल का लेक्चर है उसका हमारा मोटो ये है कि हम आपके लिए चैप्टर 2 की एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और इसमें मैंने आपको पूरी लिबर्टी दी हुई है, आप कोई भी सवाल ढूंढ के आ जाएं जो आपको लगता है कि मुश्किल है, तो मैं इंशाल्लाह कल आपके लिए वो सवाल को सॉल्व करूंगा। ठीक है जी। तो कल आपने ये करना है कि अब आप चैप्टर 2 ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब है, तो आपने जो है ना जितने टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए हैं उससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्राई करें, और जो सवाल नहीं होता नोट कर लें, कल मुझसे क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया? अच्छा सर, जो आपने लास्ट लेक्चर जो दूसरी क्लास का अपलोड किया था सर, वो ओपन ही नहीं हो रहा लिंक। क्यों ओपन नहीं हो रहा? सर एसेस मांगते हैं। अच्छा, तो उसका एक हल तो फिर यही हो सकता है कि आप वो लेक्चर मेकअप में ले लें। वो मुझे पता क्या लगता है, क्योंकि जाहिर है आप उस क्लास में तो एडिड है नहीं। यस सर, वो ऐड नहीं है इस वजह से। हाँ, वो इस वजह से, तो वो तो एक्सेस शायद आपको ना मिले। तो उसका एक हल ये कि हम अभी टाइम है 1-2 वीक्स, एक उसकी मेकअप क्लास ले लेंगे। उसमें भी हमने शायद, उसमें क्या टॉपिक क्या था उसका? सर देखा ही नहीं है सर। अच्छा, लेक्चर का टॉपिक तो नजर आ रहा होता है यार। ओपन ही नहीं हुआ। नहीं, लेक्चर का देखा टॉपिक ही तो नहीं। लेफ्ट साइड पे लिखा होता है एलएमएस पे, वो नजर आता है, लेकिन चले मैं नहीं देख देखा लूँ, सर, याद नहीं। मैं उसको देख लूंगा। तो उसके लिए फिर उसका एक हल ये होगा कि इस वीकेंड पे ना आपकी एक छोटी सी क्लास रख के वही चीज हम दोबारा से रिकॉर्ड कर लेंगे और आपको दे देंगे। मुझे लगता है कि वो वैसे दे तो ये ठीक है। सकते हैं, मतलब दे तो ये सकते हैं, पता नहीं क्यों वो आपको कर नहीं रहा। अगर तो ये सारों के साथ मसला है फिर तो उसको री रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा, और आपके साथ है सर। अगर सारों के साथ नहीं है तो फिर ये हो सकता है कि शायद आपका कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो। ठीक है ना? तो अगर तो सारों के साथ सबके है तो साथ है सर। फिर ये करते हैं कि इस वीकेंड पे ना एक मेकअप क्लास उसी क्लास की रख लेंगे। ठीक है, ये हो सकता है ठीक है सर। ताकि आपको उसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाए। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं उसको जाके ना दूसरी क्लास से आपको शेयर करूं। अभी मैंने सिर्फ उसका लिंक डाला था, अगर मुझे लगता है कि अगर मैं उधर से जाके आपको शेयर कर दूं तो शायद आपके लिए ओपन हो जाएगा, ये हो सकता है। शायद सर हो जाएगा। तो फिर मुझे ये चाहिए कि मैं दूसरी क्लास से जाके ना वो वाला पूरा ही लेक्चर शेयर कर दूंगा। ये पिछले वीक के लेक्चर की बात हो रही है, पिछले वीक का जो था। यस सर, ये जो लास्ट लेक्चर था ना हमारा थर्सडे को जो हाँ, था। तो मैं ऐसा करता हूँ ना कि मैं इंशाल्लाह आज रात को उसको पिछले दूसरी किसी क्लास का शेयर करता हूँ। अगर इससे मसला हल हो जाता है फिर आपको मेकअप नहीं लेनी पड़ेगी, वरना फिर मेकअप। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ओके जी। तो आप कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जी। तो कोई सवाल नहीं है, इसका मतलब सब कुछ समझ आ गया, जबरदस्त। तो इंशाल्लाह फिर आपसे लास्ट क्वेश्चन आप कराने लगे थे सर। ये लास्ट हो गया, मैंने कहा था ये लास्ट, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन जो हो गया है।
ठीक बस है वो सर, आखिरी था। ठीक है सर। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, जहां पर आप एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स अपनी मर्जी की मुझसे सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है जी। ओके जी, टिल देन टेक केयर ओके एंड सर, लास्ट